Good morning, students. Now the next topic is electric potential. Earlier we have learnt about electric current. Now the next topic is electric potential. So before knowing the concept of the electric potential, you should know the meaning of potential. What is potential? Let us see. We will illustrate this through an example. Two containers are there. See the dimension of the containers. This is the bigger one, this is the smaller one. But see here, the amount of water in the container A is more than amount of the in container B. But what happens? These two containers are connected by using a stopcock. When the stopcock is opened, what will happen? The water flows from that container which is at the higher level, which is means height is more, and another where the height is less. So what will happen? The water flows from this container to this container. So here the water will flow from the container A to container B. Let us consider the second example. This body is at a 100 degree, this body A, it contains 100 calories of heat and it is at a temperature of 300 degrees Celsius. Second container B, it contains 1000 calories of heat and it is at a temperature of 25 degrees Celsius. So when these two are brought in contact or they are connected by a wire, what will happen? The transfer of the heat takes place from body A to body B, because here it is at a higher temperature and it is at a lower temperature. So everything which flows in the nature from the higher to the lower. So here it doesn't matter whether it contains 100 calories and it contains 1000 calories. Here the factor is the temperature. This body is at the higher temperature and this body is at the lower temperature. So what will happen? The flow of the heat takes place from the higher temperature to the lower temperature. This happens in the case of the charges also. Let us consider two charges, charges A and charges B. Okay? When these two charges are connected by a wire or they are placed in contact with each other, जब ये दो चार्जेस किसी दूरी पर रखे हुए हैं या आपस में दूरी पर रखे हुए हैं और ये कनेक्टेड है किसी कंडक्टिंग वायर से, तो इनमें भी चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा, तो वो ट्रांसफ़र होगा, ये मैटर नहीं करेगा कि जो चार्ज है इसके अंदर किसी में ज़्यादा चार्ज है या किसी में कम चार्ज है. अमाउंट ऑफ द चार्ज डजेंट मैटर. Here that matters, because of that the flow of the charge takes place is the electric potential. यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि चार्ज यहाँ से यहाँ होगा या यहाँ से यहाँ होगा. फिर से once again I am repeating. If two charged bodies are connected with each other through a conducting wire or they are placed in contact, या दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, तो चार्ज इसमें से इसमें फ्लो होगा या इसमें से इसमें फ्लो होगा. ये मैटर नहीं करता कि किस बॉडी के अंदर चार्ज ज़्यादा है या कम है. देखो यहाँ पर भी बॉडी में किसी का हीट ज़्यादा है, किसी में हीट कम है, तो यहाँ पर फैक्टर क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पर फैक्टर क्या है? लेवल ऑफ द वाटर. वैसे यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब समझते हैं कि और कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है. देखो जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. देखो जी, होता क्या है कि जब हम कहीं चार्ज को, सपोज मैंने एक चार्ज रख दिया यहाँ पर, तो चार्ज रखने पे क्या होता है? इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, तो जैसे जैसे इससे दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? कम होती जाती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी तो पोटेंशियल भी कम होता जाएगा. तो एट इन्फिनिटी
इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। कम होते 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 लास्ट में कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो। तो मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या एक वर्क डन है। आप लो पोटेंशियल से जब इसकी तरफ ना इलेक्ट्रिक एट एनी पॉइंट, आप इस रास्ते में इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, आप इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो जब आप वर्क करा रहे हैं इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी में जानता भी नहीं होगा कहाँ पॉइंट है वो, तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो वर्क डन कहाँ से होता है, लो से हाई। क्योंकि अगर मैं चार्ज यहाँ रख दूंगा तो ये तो ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, सो देयर इज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। बट इसीलिए इसके डेफिनेशन में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि इन्फिनिटी से हम ले आ रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इन्फिनिटी का मतलब पोटेंशियल जीरो, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, ठीक है। एट एनी पॉइंट in the electric field is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from, देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज देखिए जी, अगर आप नेगेटिव चार्ज ले आएंगे तो ये तो अट्रैक्टेड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, तो पॉजिटिव चार्ज ले आ रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है इस डेफिनेशन में। सो सिंपल सा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर ले आने में। तो न्यूमेरिकली इट इज एक्सप्रेस्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट के तरह ही स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर चार्ज स्केलर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर। इसकी जो एसआई यूनिट है, जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वोल्ट। अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर वोल्ट आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। फिर उसके बाद में इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, तो कहता था आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो, तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसा ये बता ही दिया। वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं हमेशा ये पैरेलल में लगा होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब देखो न्यूमेरिकल्स में क्या रहेगा, तीन चीज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क और चार्ज। तीनों में से दो चीज गिवन होगी, तीसरा आपको निकालना रहेगा।